हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रैबिट्स, हिरन के छोटे छोटे प्यारे बच्चों, उछलते कूदते बच्चों, खुश रहो। डू यू नो वाई इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव? बिकॉज इट हैज निगेटिव चार्ज। लेकिन ये कोरोना काल में एक नई चीज सामने आ रही है। आप देखिए, दिस इज न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड around it we have electrons. Now electron is negative because it follows social distancing. है ना बढ़िया चीज? And proton is not following social distancing, so it becomes positive. तो प्यारे बच्चों, this is not the answer, we know, but it tells you that you have to follow social distancing, otherwise you become positive. तो आप ध्यान रखें अपना। And last time we have discussed about resistance, and more we have for resistance। और भी बहुत सारी चीजें रेजिस्टेंस के लिए, क्या रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपको और बताता हूं मैं। You know very well, our human body, when our human body is dry, it means dry skin, and its resistance is 10 to the power 5 ohms around होता है। And when our body is wet, it means with wet skin, the resistance is around 1500 ohm। तो इससे फायदा क्या बच्चे कहेंगे, अरे क्या सर फालतू चीजें निकाल दो। अरे देखो बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। इफ यू फाइंड करंट फॉर ड्राई स्किन, सो आई इक्वल टू वी अपॉन आई, एंड वी इज 220 वोल्ट, बताइए आपको। और ये कितना रेजिस्टेंस, 10 टू द पावर 5। तो मेरी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। याद है मुझे, 10 टू द पावर 5 मिली एम्पियर, एंड विथ वेट स्किन इट इज 147 मिली एम्पियर बिकॉज रेजिस्टेंस इज लेस। ओहो, तो ये क्या कर सकता है, यू नो, if around 2 milliampere to 10 milliampere current, then this is tingling effect। हमको tingling effect होता है अगर आप वायर को टच कर लो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 मिलीएम्पियर से 10। if current is 10 to 20, then there is muscular disorder। अरे बाप रे बाप, मस्कुलर डिसऑर्डर। आप सोचोगे मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ जाएगा। सपोज 2200 मिली एम्पियर करंट है, अरे बाप रे, ये पैरालिसिस कर देता है। एंड 100 to 3 एम्पियर करंट अगर अपन चले जाए, 3 एम्पियर, इट मेक्स आवर बॉडी फैटल। अब आप सोचोगे ये फालतू बकवास क्यों कर रहे हो भाई सर आप। अरे बच्चों, इट मीन्स resistance changes when dryness or temperature changes। if temperature changes, resistance of a body of a conductor also changes, and it changes everything। आपने देखा होगा कई बार लोग लोहे के स्टूल पे नहा धो के खड़े हो जाते हैं और फ्यूज वायर ठीक करते हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। डोंट फॉलो दैट, बी केयरफुल ऑलवेज। So today I am going to show you effect of temperature on resistance and resistivity, which is very important topic in CBSE। So effect of temperature, आज हम पढ़ेंगे क्या, effect of temperature किस किस पे, रेजिस्टेंस पे पहले देखते हैं, देन रेजिस्टिविटी को रो कहते हैं, आपको याद भी होगा। देन ग्राफ करेंगे हम, ग्राफ, एंड ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूमेरिकल्स। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि if temperature increases or decreases, then there will be a change in the resistance and resistivity। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे बोला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पर, रेजिस्टेंस. ओके, so already I think you know very well. First of all, what is the cause of resistance? Resistance होता क्या है? It is the collision between the drifted electrons with the positive ions in the conductor. When temperature increases, then amplitude of oscillations of ions increases. Ion ऐसे ऐसे मूव करते हैं. When temperature increases, their kinetic energy increases, so their amplitude also increases. ये देखो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आया तो टांग अड़ा दी और उसको रोक लिया. It means when temperature increases, then amplitude or frequency of amplitude and also amplitude increases. And there is a frequent collision between the drifted electrons and ions, which increases the resistance. In conductor, number density does not increases considerably. Only there is a change in relaxation time. We know very well R is equal to ml upon ne square a tau. It means R inversely proportional tau. R is also inversely proportional n. पर यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते कंडक्टर्स में, इसलिए कोई फायदा नहीं इसको लेने से. नॉट एप्रिशिएबल चेंज, बट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज. याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक पाव भाजी के तवे में बिठा दे तो गर्म करना शुरू करे तवे को तो आप उछलोगे, और बहुत गर्म हो जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी. इट मीन्स योर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज. सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, tau decreases, therefore resistance increases. That we know now. It means for conductor, resistance is directly proportional to the temperature. यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, देख लो आप, ये एक नई चीज आई आपके पास. करेक्ट. लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते ही जाएं या कम करते जाएं, देन वी फाइंड देयर इज इक्वेशन, एक इक्वेशन बनती है हमारे पास, क्योंकि इट इज ऑल्सो नॉट लीनियर. कोई जरूरी नहीं कि लीनियर ही होगा वेरिएशन, बाद में चेंज भी हो जाता है. सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स it was found that with change या increase, चलो, with increase in temperature, ये डेरिवेशन पूछते नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ. RT इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा कर सकते हैं, डेल्टा टी कर सकते हैं, टी कर देता हूँ, प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर, where what is RT? Resistance at T degree Celsius or T Kelvin. R naught is resistance at 0 degree Celsius or 0 Kelvin. Alpha is temperature coefficient. Delta T is difference in temperature. Beta is also temperature coefficient for higher powers. But the value of beta is very, very small, so we neglect this. It means RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T. और यहाँ अल्फा निकालना है हमें. क्या निकालना? अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू टेम्परेचर कॉफिशिएंट. बच्चों, ये बहुत काम की चीज है, अभी आपको समझ में आएगी क्यों है. यहाँ तक क्लियर हुआ? ये इक्वेशन मिलती थी अगेन. RT इज रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस और T केल्विन. R naught is resistance at 0 Kelvin or 0 degree Celsius of a conductor. Alpha temperature coefficient and delta T is difference in temperature. डिफरेंस बोल रहा हूँ क्योंकि बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. तो मैं आगे चल रहा हूँ. तो देखिए RT इक्वल टू R naught 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ओके, बीटा और डेल्टा टी को मैंने निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. Okay, now moving ahead, look here, R naught को नीचे ले आता हूँ या मल्टीप्लाई कर देता हूँ. चलो, RT इक्वल टू R naught प्लस R naught अल्फा डेल्टा टी. सो RT माइनस R naught इक्वल टू R naught अल्फा डेल्टा टी.
एक्चुअली आई एम फाइंडिंग अल्फा। क्या निकाल रहा हूँ प्यारे बच्चों? अल्फा निकाल रहा हूँ। सो अल्फा निकालना है तो अल्फा अकेले कर दो जिसको भी निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू देखो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी पे फार्मूला आ गया। सो आर टी माइनस आर नॉट इज चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ वैसे मेरे हिसाब से, पर फॉर कंडक्टर इट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, है ना? तो इंक्रीज लिख देते हैं या चेंज इन रेजिस्टेंस। चलो चेंज इन रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या तक? हाँ दिख रहा है। अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर। थोड़ी राइटिंग खराब हो गई यार, सॉरी है। तो मैं बोलूँगा तो आप समझ जाना क्या करना चाह रहा हूँ। अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन, क्योंकि आर टी पे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ही होगा तो इसको चेंज की जगह हम इंक्रीज इसे लिख सकते हैं अगर देखें तो। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड इट इज डिफाइंड एज increase in temperature per unit original resistance and per unit change in temperature or per degree Celsius change in temperature. Now what is the SI unit of alpha? SI unit जरा आप देखो तो RT minus R naught मतलब ohms, R naught is ohms and delta theta is degree Celsius या केल्विन भी कह सकता हूँ, वैसे केल्विन कहना चाहिए मुझे, है समझदार आदमी को केल्विन बोलना चाहिए। तो देखो ओम से ओम गया, इट इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। अरे डायमेंशन भी तो यही हो गई, पर केल्विन, बिकॉज के इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब इसका काम क्या है बच्चों? मैंने अभी रेजिस्टेंस करा है, रेजिस्टिविटी आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू गिव यू। ये फार्मूला याद करें। सपोज ये फार्मूला तो है ही हमारे पास, एंड सपोज यू हैव टू टेम्परेचर्स, टू डिफरेंट। तो देखिए मैं एक नया फार्मूला बनाता हूँ। एट टेम्परेचर T1 रेजिस्टेंस इज R1, है ना? ठीक तरीका है। एंड एट टेम्परेचर T2 रेजिस्टेंस इज R2। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर अल्फा? देखो अल्फा बदल गया, therefore alpha is equal to R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1। मॉडिफाई हो गया ना? द प्रीवियसली फार्मूला ऑल्सो यू कैन यूज, बट उसमें 0 डिग्री सेल्सियस वाला हो तब। अच्छा इसको एक और आ सकता है, सपोज यू हैव द सेम मटेरियल, यू हैव सेम मटेरियल बट टेम्परेचर इज डिफरेंट, तो क्या होगा? ऑल्सो एक और फार्मूला बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल के काम आता है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। कई बच्चे बोलते हैं सर हमको तो थीटा पसंद है। अरे थीटा ले लो भाई, ये लो 1 प्लस थीटा। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने फार्मूला थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है। वाई? अरे R1 नहीं निकालते हम, ज़्यादातर क्या निकालते हैं R2, बट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्स करके लिख दो R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा थीटा 1। एंड दिस यू कैन यूज फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। कैसा लगा बच्चों? अरे अच्छा लगा। अभी देखना, इससे और बताता हूँ आपको आगे। नाउ सपोज you find effect of temperature on resistivity. Do you know resistivity? अरे specific resistance यार, specific resistance. Okay, nothing will change. Only in place of alpha we can write beta
और अल्फा भी लिखते हैं कई लोग। तो मैंने देखा कई टीचर्स बोलते हैं अरे तुमने बीटा क्यों नहीं लिखा, मार्क्स नहीं देते। दैट इज रॉन्ग। Temperature coefficient is a constant and a student can use any constant, either alpha or beta. So teachers has to give marks. That is wrong. So at temperature, ये देखो यहाँ फार्मूला बना देता हूँ, at temperature T1 resistivity is ρ1 and at temperature T2 resistivity is ρ2. Therefore the temperature coefficient क्या होगा for resistivity? Therefore temperature coefficient, मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, बीटा पहले, why? टीचर्स कई बार बोलते हैं नहीं यार हमको बीटा ही चाहिए, तो बीटा लिख देना। तो देखिए ρ2 minus ρ1, याद है ये, we have R2 minus R1, so I am writing ρ2 minus ρ1 in place of R rho upon ρ1 into T2 minus T1, और एक और फार्मूला आ गया, याद होगा आपको, ρt minus ρ0 अपॉन ρ0 into डेल्टा T। इसका भी यूनिट इज सेम, कौन सी यूनिट आएगी, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, क्योंकि ये तो कट जाएगा ओम मीटर। ओके, अब हम आते हैं असली चीज पे, द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ तक आ गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मैं धीरे चलता हूँ तो बच्चे बोलते हैं आप बहुत धीरे पढ़ाते हो, तो आज मैं जल्दी पढ़ाऊँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हटा दिया ना, नाउ क्लासिफिकेशन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब ग्राफ। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा या बीटा या टेम्परेचर भी कह सकते हो, all are combined here. So first of all I am going to write the formula. देखो, alpha is equal to R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1 and beta is equal to ρ2 minus ρ1 into T2 minus T1। ये दोनों हमारे सामने, ठीक? थक तो नहीं गए? थोड़ा खाया पिया करो घर पे, अच्छे फ्रूट, अच्छी सब्जियां। मैं बकवास नहीं करता हूँ, कई बच्चे सोचते होंगे बकवास करने लगता है, ना ना, तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं चाहता हूँ मजबूत स्ट्रांग बनो। और कम्युनिकेशन विथ मदर एंड फादर, मम्मी पापा से हमेशा कम्युनिकेशन रखो। अकेले कमरे में बैठ के वीडियो गेम मत खेलो, दोस्त यार काम आएंगे पर उससे ज़्यादा मम्मी पापा काम आएंगे। ओके, सो लुक हियर, फॉर कंडक्टर्स, पहले कंडक्टर्स को ले आया मैं, फॉर कंडक्टर्स, यार आजकल मैं रेड दूसरा कोई कलर यूज नहीं कर रहा हूँ, वो भी करता हूँ। फॉर कंडक्टर्स, नाउ इन कंडक्टर्स मीन्स ऑल मेटल्स। इन मेटल्स व्हाट हैपन्स, जनरली इन मेटल्स की बात कर रहे हैं, इन मेटल्स if T2 greater than T1 then R2 greater than R1, ये पक्की बात है बस, because R inversely proportional tau and directly proportional temperature, if temperature increases resistance increases। आप यहाँ लिख सकते हो as R inversely proportional tau directly proportional temperature, therefore for conductors are directly proportional temperature। याद रखना बच्चों, if temperature increases resistance increases and resistivity also increases। कई बच्चे बोलेंगे सर रजिस्टिविटी इज डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नो 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 नो,
Resistivity is also depend upon temperature because relaxation time is there. याद है रेजिस्टेंस ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ, तो एल अपॉन ए काट दो तो एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, टाउ आया ना, यानी टेम्परेचर भी आया. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा इज पॉजिटिव एंड लार्ज. So, if a material possesses temperature coefficient which is positive and large, then that material is a conductor. क्या होता है वो? कंडक्टर. इसका ग्राफ बना के बताता हूँ आपको. तो यहाँ बना दूँ, ये मिटा देता हूँ, चलेगा यार? नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं कर दे तो यार, जगह नहीं है. क्लासिफिकेशन पे तो आ ही गया मैं. तो देखिए अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ. You can take resistance here, maybe rho या R, मैं तो दोनों लेता हूँ, and here temperature in Kelvin, temperature in Kelvin, and this is for copper I am. और याद रखो स्टार लगा रहा हूँ. स्टार का मतलब समझते हो क्या आप? अरे भाई साहब ये एग्जाम में आता ही है. हाँ तो कैसे? देखो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल टी है, एंड रो ऑल्सो प्रोपोर्शनल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रो ऑल्सो प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. पर ऐसा होता नहीं है. इट इज नॉट लीनियर फॉर एवरी टेम्परेचर और एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर. ऐसा होना चाहिए, ये होना ऐसा चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. होता कैसा आपको बताता हूँ. ऐसा होता है, ये याद रखना बच्चों. अब ये बनाना है आपको, ये आपको बनाना है. एक और बताता हूँ, इसमें कई जगह ऐसा भी मिलेगा आपको, आप ये भी बना सकते हो. और ये रेंज आ रही है, देखो यहाँ स्ट्रेट आ रहा है इतना. इट मीन्स हियर इट फॉलोज ओम्स लॉ. तो ये भी सही है. दिस इज फॉर कॉपर एंड दिस इज ऑल्सो फॉर कॉपर. ओके बच्चों. तो two graphs are given here. You can use any graph. Both are correct. ये भी वही है. तो थोड़ा मैंने ऊपर से स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा यहाँ से कर. अब ठीक है. ओके. एंड when we discuss any graph, please follow the diagram of NCERT. ये मैं लिख रहा हूँ, बाद में मत लिखना अरे सर आपने तो, आपका स्लोप ठीक नहीं था आपका ये. अरे मैं तो डायग्राम समझा रहा हूँ कैसे बनेगा. स्लोप यू कैन फाइंड, और करेक्ट डायग्राम एनसीईआरटी से जरूर देखना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट नाउ फॉर सेमी कंडक्टर पे आते हैं. किस पे आते हैं नाउ? सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है? फॉर सेमी कंडक्टर्स, semiconductors means silicon, germanium, gallium arsenide. And in semiconductors what happens? बताता हूँ आपको. इन semiconductors बड़ा ही उल्टा सा काम होता है बच्चों, देखना क्यों होता है. इन semiconductors when, थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा आपको, दूसरी चौक लेता हूँ. When temperature increases, then number of covalent bonds breaks and number of free electrons releases. सेमीकंडक्टर में ये बहुत बड़ी चीज होती है. इन सेमीकंडक्टर आपको बताया था मैंने, याद होगा आपको, ये वाला, ये देखो पीएन जंक्शन, याद है, ट्रांजिस्टर. दीज आर सेमीकंडक्टर्स. व्हेन सेमीकंडक्टर व्हाट हैपेंस?
When temperature increases, the number of covalent bond breaks and releases large number of free electrons. Large. Therefore, n increases. क्या increase हो जाता है? N. Now, what is the relation of n with R? So, as R equal to ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, यानी R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n है, और बीटा में भी यही होता है बॉस, रजिस्टिविटी ऑल्सो। अगर आपको याद नहीं हो तो रजिस्टिविटी का भी यही फार्मूला है, एल और ए को भूल जाओ, यानी रो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n है। Therefore, as n increases, R and rho decreases। इसीलिए आपने देखा होगा कि लैपटॉप को थोड़ा सा चालू करो और थोड़ी देर बाद वो अच्छी तरह काम करने लगता है। अरे थोड़ा टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि उसको गैस पे ही रख दो आप बड़े टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते, नो नो नो, नॉट दैट, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, इट मीन्स इन सेमीकंडक्टर हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया इन सेमीकंडक्टर? टाउ ऑल्सो इंक्रीजेस, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, बट एन इंक्रीजेस कंसिडरेबली, एन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और टाउ कितना भी बढ़े ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो मैं असली लाइन लिखता हूँ, ये आपको समझ में आ गया है, ग्राफ भी बनाऊंगा मैं एक बार और लिखता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इन सेमीकंडक्टर, if temperature increases, यानी T2 greater than T1, then R2 less than R1, ρ2 less than ρ1, ρ2 less than ρ1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कह रहे बच्चों? एंड वाई? बिकॉज n increases, therefore R and rho decreases. It means resistance of a semiconductor decreases with increase in temperature। तो बहुत बढ़िया चीज़ मिली हमको कि ये ऐसी चीज़ है इसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। while in metals you know when temperature increases resistance also increases, so they are providing us less current। ओके, तो ग्राफ बताते हैं इनके बीच में हम, यहाँ बनाता हूँ मैं, ये यहाँ बना देता हूँ, चलो जगह है। देखो, आई एम जाओ ड्राइंग ए ग्राफ फॉर टेम्परेचर हियर इन केल्विन एंड हियर आई एम टेकिंग रो एंड आर। तो वैसे इसको कार्बन भी लिया जाता है या सिलिकॉन, जर्मेनियम भी, एंड इट इज लाइक दिस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का तो आपको आता ही है, क्या बताएं, मेरे से ज़्यादा जानकार हो आप लोग, हो ना? ओके, अब लास्ट पे आते हैं, नंबर 3 हमारा। नंबर 3 इज अलॉय। कौन सा बच्चों? अलॉय। बहुत काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। एंड देयर इज ए स्पेशल यूज ऑफ दिस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर अलॉय। सो नंबर 3 फॉर अलॉय। Alloy, you know, nichrome, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, अरे वही that we used already in meter with potentiometer। याद आया आपको? इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, ये देखो यहाँ इसमें यूज़ किया था, इसके अंदर ये, इसके अंदर भी है रेजिस्टेंस कॉइल, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, और भी पड़ी है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ। देखो रेजिस्टेंस कॉइल लाके, आप कहेंगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही चीज़ बताई, ये तो हमने स्कूल में भी देखी है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस कॉइल याद है? अरे ये किसकी बनी है? कॉपर की नहीं है, मेटल की नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ अलॉय। अलॉय से बनती है, हमेशा याद रखना बच्चों। ना क्यों ऐसा बता रहा हूँ? इन अलॉय if temperature increases, there is no appreciable change in the resistance and resistivity। appreciable change नहीं होता, there is, होता जरूर है पर ज़्यादा नहीं।
there is no appreciable change in resistance and resistivity. Resistance and resistivity. Therefore, alpha is equal to positive but small value, करीब 10 to the power -5 per degree Celsius. It means alpha of कंडक्टर वॉज पॉजिटिव, याद है ना आपको, एंड लार्ज वैल्यू नहीं याद तो अभी बताऊंगा आपको, एक बार फिर से बता देता हूं. कंडक्टर्स में क्या था, अल्फा इज पॉजिटिव एंड लार्ज वैल्यू. ओके बच्चों. फॉर सेमीकंडक्टर क्या हुआ था आपको याद है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ था. So for semiconductors alpha is negative. ये क्वेश्चन नीट में आया था इस बार कि नेम द मटेरियल whose टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव. किसका नेगेटिव है, सेमीकंडक्टर. वाई, क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 बट R2 लेस देन R1. तो याद है अल्फा क्या था, R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1. If R2 is less than R1, तो बड़े वाले का साइन आता है नेगेटिव. ये किसके लिए आया, फॉर सेमीकंडक्टर्स, याद रखें. एंड फॉर अलॉय अल्फा इज पॉजिटिव बिकॉज R2 इंक्रीजेस बट बहुत कम, ρ2 इंक्रीजेस बहुत कम. सो अल्फा बीटा दोनों है. ये मत सोचना कि आसार आपने बीटा का नाम लिया. बीटा एंड अल्फा आर पॉजिटिव बट हैविंग ए स्मॉल वैल्यू. अराउंड मैग्नीन के लिए 10 to the power -5, 10 to the power -3 to -5 चलते हैं. तो इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ फॉर अलॉय, सो अलॉय का ऐसा ग्राफ होता है, देखिए आप, ये नाइक्रोम का दिया हुआ है, नाइक्रोम. इट इज गिवन इन NCERT. हियर वी आर टेकिंग टेम्परेचर इन केल्विन और इन पर डिग्री सेल्सियस एंड हियर R एंड रो. तो ये करीब 45 डिग्री से रहता है, मैंने देखा है, ऐसा है. थोड़ा और चेक कर सकते हैं आप लोग बुक में से. फायदा क्या है इसका, अलॉय का ये फायदा है कि व्हेन टेम्परेचर चेंजेस देन देयर रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज. देयर रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर and so they are used to make standard resistance coils and used as a wire in potentiometer and meter bridge. Because in meter bridge and potentiometer a large current flows for a small interval of time, for a small fraction of time. Due to that high resistance, Joule's heating effect is there, wire becomes hot, temperature increases but their resistance and resistivity does not change, and so our result, practical result is not affected and not changed. फिर से बता रहा हूँ, ये लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको सुना रहा हूँ, आप खुद लिखना. Alloys are used to make standard resistance coil. क्वेश्चन लिख देता हूँ, कहीं बाद में आप बोलोगे कि यार सर ने बताया नहीं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. अलॉयज कौन कौन सी, ये भी नाम बता देता हूँ. कॉन्स्टेंटन, यूरेका, मैग्नीन आर used to make standard resistance coils and in meter bridge and potentiometer wire. भाई क्या बोला मैंने, भाई देखो सब कुछ कर दिया मैंने भाई. फिर
क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह आप। Alloys are used to make standard resistance coils and in meter bridge and potentiometer wire. Why? आंसर बता रहा हूं, because alpha for alloy is positive but having a small value, 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 5 per degree Celsius या per Kelvin. So their resistivity and resistance is independent of increase in temperature। और इसका सही आंसर मैंने आपको दिया है इन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर के वीडियो में। इसके और भी आंसर हैं, इसके अब आगे क्या लिखोगे आप? ऑल्सो देयर रजिस्टिविटी इज independent of external factors like pressure, elastic strain, then their contact potential with copper is low, इसलिए भी यूज करते हैं, and their resistance is not affected by external factors, temperature, alpha is less। सारा आंसर लिख दिया मैंने। तो वीडियो बड़ा हो गया है तो आज यहीं तक रखते हैं अभी, और इसके बाद फिर आपको अभी और बताएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी कोई पैदा होता है उसके साथ उसका भाई बहन कोई ना कोई आपके भी होंगे, तो रेजिस्टेंस की भी एक भाई था कंडक्टेंस, एंड रेजिस्टिविटी की एक बहन थी कंडक्टिविटी, और उनके एक ताऊजी थे करंट डेंसिटी। तो बहुत सारी क्वांटिटीज है, इनका रिलेशन भी है, वो हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको देखें, और एग्जाम में आते हैं इसमें से क्वेश्चंस। एंड ग्राफ, फिर बोल रहा हूँ, ग्राफ आप एनसीईआरटी में से जरूर फॉलो करें। ओके बच्चों, थैंक यू। सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट। कई बच्चे, बहुत कम वैसे तो नॉमिनल, जो इसको अनलाइक भी करते हैं, तो अनलाइक करें तो बताएं, मेरी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए अनलाइक मत करो, और मैं नाराज़ नहीं होता कभी किसी से। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। घर पे रहो, माता पिता से प्यार करो, घर पे रहोगे तभी निगेटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव बिकॉज इट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।